Hello sir, my name is Rahul Vishwakarma and today I am here to present topic on casting process. Before the casting process, we just some brief introduction about the manufacturing process. Okay. Manufacturing process. Manufacturing process, it is a process by which the raw material can be converted into the finished product. It is a process of value addition to the raw material such that the final product is having the more value in market. Like example, there is a raw material of wood, and from the wood it converted in furniture, table, chair, etc. It means that for this process the tree is raw material and the furniture is finished product. And it's have the more value than wood, not the tree, because tree is the very important, बट एक लकड़ी से जो फिनिश प्रोडक्ट जो हमारे बन रहे हैं वो इसकी वैल्यू ज़्यादा है मार्केट में इस पे जो प्रोसेस करने पे. ओके, नाउ सम क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में. तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसके क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला और जो सबसे बेसिक आता है वो होता है कास्टिंग प्रोसेस. Then second one is metal forming process. And third one is fabrication process. फैब्रिकेशन प्रोसेस जिसको हम ज्वाइनिंग प्रोसेस भी कहते हैं. ज्वाइनिंग. And the fourth one is material removal process. It is also known as machining process. Processes are also classified with the other terms with zero process, additive process, and subtractive process. In this process, zero process means the no added, no subtraction, only change. Like example, casting and metal forming. In zero process, there is the casting and the metal forming. In two process, the metals change one form to another form, and in the additive process, there is the metal is added to parent metal. Like example, joining process. And in subtractive process, there is the removal of metal. Like example, machining process.
Now let's come to casting process. This is the basics of manufacturing process. Now let's come to casting process. Casting process, it is a very basic process and it is used from the very ancient times. It is a process in which the molten liquid metal is allowed to solidify in defined mold. Means first we convert the material into the liquid form after heating. Then the liquid metal is poured in mold for to get the desired shape. यहाँ पे जो भी लिक्विड जो भी मटेरियल था उसको हमने इतना हीट किया कि ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. देन हमको जिस भी डिजायर्ड शेप में चाहिए होगा हम उसका एक मोल्ड बनाए हैं. दिस इज द मोल्ड विच इज filled with sand and this is cavity है जो स्पेस है जहाँ पे हमको जिस शेप का कैविटी ऑफ डिजायर्ड शेप now we pour this liquid metal into this cavity. After the solidifications we get this object. Now there is some advantage and some disadvantage of casting. Now let's take the advantage. It's the very basic advantage is the complex shape of the object can be easily cast. Means the complex shape of object can be easily cast. And the second one is it is less expensive than other process. Like यहाँ पे हमें कोई मशीनिंग नहीं करनी है या फिर कोई ऐसा टूल्स नहीं यूज़ करना है. बस हमें एक इसके मेल्टिंग पॉइंट इतना हीट करना है कि ये मेटल या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. देन हम इसके डिजायर्ड शेप में या डिजायर्ड आउटपुट जैसे भी हमको चाहिए उस कैविटी में हम इसको पोर कर देंगे. तो हम ईजिली जो भी हम शेप चाहते हैं वो भी मिल जाएगा. और ये बहुत ही कम खर्चीला होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है. एंड द थर्ड वन इज डक्टाइल. ये बहुत प्रोसेस पे काम करता है या काम किया जा सकता है, वो डक्टाइल हो या ब्रिटल हो. डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल can be easily cast. And the fourth one is large object also can be cast. अब जब लार्ज ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे हम मशीनिंग या फिर मेटल फॉर्मिंग करने में हमें प्रॉब्लम्स होती है या हम नहीं कर पाते हैं. बट द कास्टिंग करने में हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, ये थोड़ा इजीली हो जाता है. अब इसके कुछ एग्जांपल जिससे कि हम कास्टिंग कहाँ करते हैं, जैसे कि मशीन टूल बेड,
gearbox housing. It's very complex shape. It's a large object. Ground roller, etc. Okay, now let's take it have some disadvantage also. It is laborious process, no doubt it is laborious. And strength is not very good. Strength is not good or यूनिफॉर्म. स्ट्रेंथ अच्छी भी नहीं होती है और यूनिफॉर्म भी नहीं होती है. कहीं कहीं पे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी होती है. ज़्यादा अच्छी का मतलब कहीं कहीं पे ज़्यादा स्ट्रेंथ मतलब वेरी करता है इसकी स्ट्रेंथ. कहीं पे स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है. लाइक एग्जांपल अगर हम इसके आउटर सरफेस पे देखें तो वहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पे इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं. जहाँ बीच में इसके जो ग्रेन्स है वो थोड़े बड़े और कॉलमनर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो वहाँ का जो स्ट्रेंथ है वो उतनी अच्छी नहीं होती है. एक चीज़ और, इसकी जो सरफेस फिनिश है आफ्टर कास्टिंग, द सरफेस फिनिश इज नॉट गुड. So after casting we have to do machining process for the finishing or the surface finishing, so it is essential. Okay, now it's over. अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि जब हम कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग करने में कौन कौन से कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे कि पैटर्न, मोल्ड, बॉक्स, सैंड, ये सब. तो अब हम अगर एक बेसिक सा देखें तो यहाँ पे एक मोल्ड बॉक्स होता है. मोल्ड बॉक्स जिसके अंदर हम कैविटी बनाते हैं या जिसके अंदर हम पैटर्न रखते हैं. ठीक, तो ये है एक मोल्ड बॉक्स. जिसके अंदर लाइक एग्जांपल मुझे एक क्यूब सेक्शन के लिए एक मोल्ड बॉक्स बनाना था. तो ये क्यूब सेक्शन का इसका एक पैटर्न होगा. पैटर्न इसका एक ठीक उल्टा या सेम इसी के जैसा या इसी की एक कॉपी, जो कि हम यहाँ पे इसके अंदर रखेंगे. यहाँ पे इसके ऊपर से सैंड फिल करेंगे. ये जनरल बात है. सैंड फिल करने के बाद रैमिंग ऑपरेशन होगा. रैमिंग ऑपरेशन होने के बाद ये जो सैंड है ये थोड़े से और ज़्यादा डेंस हो जाएंगे. ज़्यादा डेंस होने के बाद इसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी. अब उसके बाद हम यहाँ से जो भी पैटर्न होगा, पैटर्न को हम निकाल लेंगे बाहर. ठीक, दिस इज पैटर्न. तो यहाँ पे एक कैविटी बन जाएगी. अब इस कैविटी में हम मॉल्टन मेटल को हम इसमें पोर कर देते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे जो पैटर्न है, पैटर्न इज द replica of final casting object which to be produced with some modification. अब ये मॉडिफिकेशन टर्म्स कहाँ से आया? मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसको जब भी हम बनाते हैं तो वहाँ पे कई अलाउंसेस देने होते हैं. जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले बात किया था कि इसकी सरफेस फिनिश बहुत अच्छी नहीं होती है. तो सरफेस फिनिश अच्छी करने के लिए हमको मशीनिंग करना होगा.
तो जब भी हम मशीनिंग करेंगे तो इसका जो भी डायमेंशन होगा वो कम होगा। अब डायमेंशन कम होगा तो उसके लिए हम पहले से इसकी डायमेंशन बढ़ाएंगे मशीनिंग करने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं मशीन अलाउंस। ठीक। इसके अलावा जब भी हम लिक्विड स्टेट से सॉलिड में कन्वर्ट होता है और सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद जब वो सॉलिडिफाई होता है, जब वो कूल होता है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब वो जो भी मेटल ऑब्जेक्ट है वो सिकुड़ेगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो हमें यहाँ पे जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमको यहाँ पे एक श्रिंकेज अलाउंस भी देना पड़ेगा, श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन एक अलाउंस भी देना पड़ेगा, ताकि जब ये श्रिंक करे या कॉन्ट्रैक्शन हो तो इसकी जो डायमेंशन है वो प्रॉपरली हमको मिल पाए। तो ये सारे आ जाएंगे इसमें मॉडिफिकेशंस में। तो मॉडिफिकेशंस आर, यहाँ पे कुछ जो मॉडिफिकेशंस हैं वो अलाउंसेस के तौर पे हैं। यहाँ पे कुछ अलाउंस ऐसे हैं, जैसे कि पहला कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंक अलाउंस। Shrinkage allowance, and the second one is draft or taper allowance, and the third one is machine और finish allowance, जिसकी अभी हम लोगों ने बात किया, and the fourth one is shake or lapping allowance, and the fifth one is distortion और chamfer allowance। अब हम बात करते हैं एक एक करके, जिसमें से सबसे पहला है श्रिंकेज अलाउंस। So when the liquid metal is allowed to solidify in the cavity, there is a possibility of contraction of the material due to the size of the casting. So it will be slightly reduced when compared to the actual size of the casting. So when the liquid metal is cooled from the pouring temperature to freeze temperature, the shrinkage is liquid shrinkage. Like जैसे कि हम यहाँ पे एक ग्राफ से देख लेते हैं, ग्राफ से समझते हैं। This is the temperature and this is time. ये है pouring temperature, ये है freeze temperature और ये है ambient temperature। तो जो pouring temperature और ये जो टाइम के बीच में जो ग्राफ है, तो जब भी हम pouring करते हैं तो सॉलिडिफाई होता है। ठीक। दिस इज लिक्विड श्रिंकेज। ठीक। थोड़ा सा कूल होगा तो एक फ्रीज टेम्परेचर पे आएगा, और ये फ्रीज होगा तो लिक्विड एंड ये होगा लिक्विड प्लस सॉलिड, एंड दिस इज टोटली लिक्विड and this phase is liquid plus solid, and this is known as solidification shrinkage. And after this, इसके बाद एम्बिएंट टेम्परेचर तक ये सॉलिड स्टेट में होगा, और इसको कहते हैं सॉलिड श्रिंकेज। तो इन द श्रिंकेज अलाउंस, यहाँ पे जो लिक्विड श्रिंकेज और जो सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज है, ये कंपनसेट होगा राइजर से। राइजर एक टर्म्स है इसमें, अभी वो हम लोग आगे समझेंगे उसको। और ये जो सॉलिड श्रिंकेज है, जो कि सॉलिड होने के बाद है, तो ये जो कंपनसेट होगा वो श्रिंकेज अलाउंस से ही होगा। अब ये जो श्रिंकेज अलाउंस है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा जो कैविटी या जो ऑब्जेक्ट बनना था वो 10 mm
का एक क्यूब है, इस साइज का बनना था, ठीक, 10 इंटू 10 इंटू 10। बट जब हम श्रिंकेज अलाउंस जब देंगे इसमें, यानी कि श्रिंकेज अलाउंस देने का मतलब ये है कि हम इसमें इसका जो डायमेंशन है इसकी उसको थोड़ा सा बढ़ा करके देंगे, यानी कि ये 10 mm प्लस श्रिंकेज अलाउंस, तो इसकी एक जो डायमेंशंस होगी वो इतनी होगी, जो पैटर्न होगा उसका, ठीक, पैटर्न का जो एक डायमेंशन होगा वो 10 mm प्लस श्रिंकेज अलाउंस जो भी होगा वो होगा। अब इसमें जैसे कुछ मटेरियल है, जैसे कि कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम और कास्ट आयरन, इसके कुछ श्रिंकेज अलाउंस कितने कितने होते हैं वो बताता हूँ मैं। कॉपर के 17 mm पर मीटर, ब्रास के हैं अप्रॉक्स 24 mm पर मीटर, एल्युमिनियम का 13 mm पर मीटर, फॉर द कास्ट आयरन इज 10 mm पर मीटर। जनरली इन सब के लिए जब भी हम देते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव अलाउंस देते हैं, ठीक, सबके लिए। इन केस ऑफ ग्रे कास्ट आयरन, in case of gray cast iron we give the negative allowance, negative shrinkage allowance, बिकॉज ग्रे कास्ट आयरन में जब भी ये कूल होता है, जब भी ये सॉलिडिफाई होता है तो इसके जो ये श्रिंकेज करने के बजाय ये इसमें एक्सपेंशन होने लगता है, और ये एक्सपेंशन होता है अपनी जो एचसीपी फॉर्मेशन के थ्रू। एचसीपी फॉर्मेशन जब भी होता है तो यहाँ पे एक्सपेंशन होने लगता है और यहाँ पे हमें नेगेटिव श्रिंकेज देनी होती है। और यहाँ पे एक चीज़ और जो समझने वाली बात यह है कि जब भी हम आउटर सरफेस पे देते हैं श्रिंकेज अलाउंस, लाइक ये दिस इज द आउटर सरफेस, दिस इज द इनर सरफेस, तो जब भी हम आउटर सरफेस पे यहाँ पे जो भी श्रिंकेज अलाउंस है उसको हम ऐड करते हैं अलाउंस को, लेकिन जब भी इनर सरफेस होता है यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं अलाउंस को, बिकॉज जब भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब भी यहाँ पे सिकुड़ेगा तो इसका जो डायमीटर, जो होल डायमीटर है, जो इंटरनल डाया है वो एक्सपेंड करेगा। तो जब एक्सपेंड करेगा तो जो साइज होगी वो डिफर हो जाएगी, वो हमको ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ बात थी श्रिंकेज अलाउंस की। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं डिस्टॉर्शन। कौन सा था? ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस। सेकेंड वन इज ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस। ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस का मतलब ये है कि जब भी ये जो कैविटी है, मैं यहीं से समझाता हूँ। ये मोल्ड बॉक्स है और ये कैविटी है। कैविटी में से जो पैटर्न है, पैटर्न को फिल करेंगे, उसके बाद सैंड डालेंगे, सैंड डालने के बाद लैमिंग करेंगे। तो लैमिंग, इसके जो सैंड है और ये जो पैटर्न है इसके सरफेस पे स्टिक कर जाता है। तो स्टिक करने के लिए हमको यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्राफ्ट करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको पैटर्न को पुल आउट कर पाएंगे। तो उसी को हम कहते हैं ड्राफ्ट और जब भी यहाँ पे ये स्टिक हो जाता है तो प्रॉपरली ये डिस्टॉर्ट ना हो, इसलिए इसको निकालने के लिए हम इसमें कुछ ऐसा बनाते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक टेपर सेक्शन दे देते हैं। टेपर सेक्शन देने से इसको हमें निकालने में आसानी होती है, जिसका एंगल होता है 1/2 to
2 डिग्री तक, जिससे हमें निकालने में आसानी होती है, जिसको हम कहते हैं ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस। एंड द थर्ड वन इज मशीन अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस। हमारा जब ये ऑब्जेक्ट निकलेगा तो इसकी जो सरफेस है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक। तो इस पे हम मशीनिंग करेंगे, तो मशीनिंग करेंगे तो यहाँ से कुछ मेटल रिमूव होगा। इस मेटल को रिमूव करने के लिए जो डायमेंशंस जो हमें चाहिए, जो ऑब्टेन करना है, उससे मशीनिंग और जितनी करके निकालनी है, यहाँ पे इसका डायमेंशन थोड़ा सा बढ़ेगा। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा ये कहें कि हम इसके डायमेंशंस को इसमें एक अलाउंस देते हैं, मशीन अलाउंस, ताकि मशीन करने के बाद हमारा जो साइज है, जो सैंपल है, वो प्रॉपरली फिट है। एंड द फोर्थ वन इज शेक और wrapping allowance. During damming, the molding sand will be stick to the surface of pattern. So due to the adhesive property, for easy removal of the pattern from the mold, some clearance is required between the pattern and the mold surface. So this can be produced by the shaping or wrapping allowance. Like example, this is pattern and this is the sand which is stick. So अगर मुझे ये 10 का चाहिए था, तो यहाँ से यहाँ तक अप्रॉक्स 12 mm कह लें या यूनिट कह लें, mm तक हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ताकि उसके बाद हमारा जो भी पैटर्न ये जो निकले वो प्रॉपर है। So due to shaking, ये जो भी डायमेंशंस जो बढ़ रहे हैं यहाँ पे एक्सपेंड हो जाता है। जैसे कि मुझे अगर 10 mm का चाहिए था, तो जब भी इसको निकालने के लिए जब भी हम इसमें शेक करेंगे या उसमें रैपिंग करेंगे, तो यहाँ पे गैप आ जाएगा, वो 12 mm का होगा। तो यहाँ पे हम देंगे नेगेटिव अलाउंस। नाउ अब हम आते हैं एलिमेंट ऑफ कास्टिंग। एलिमेंट ऑफ कास्टिंग, एलिमेंट ऑफ कास्टिंग में सबसे पहले तो जो मोल्ड बॉक्स है, और एलिमेंट ऑफ कास्टिंग में यहाँ पे हम देखते हैं कि कास्टिंग के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो जब भी हम कास्टिंग करते हैं तो उसमें यूज़ होते हैं। यह है पोरिंग बेसिन, एंड दिस इज स्टेनर, दिस इज स्किन बॉब, यह है गेट, और यह है कैविटी। और यह है राइजर। यहाँ पे मैं सबका नाम दे देता हूँ। ये है पोरिंग बेसिन, एंड दिस इज स्प्रू, ये है स्टेनर। यहाँ पे स्टेनर पे एक सिरेमिक की एक जाली लगी होती है, नेट लगी होती है, जहाँ से यहाँ पे अभी हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। यह स्किन बॉब, एंड दिस इज गेट।
ये है हमारी कैविटी और ये है लाइजर। सबका अपना अलग अलग काम है। जब भी हम यहाँ से पोरिंग बेसिन में लिक्विड मॉल्टन मेटल को जब भी हम यहाँ पे पोर करेंगे तो यहाँ पे लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे यहाँ से ये नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे ये बहुत ही स्मूथ इसलिए आएगा, स्मूथ आएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं आएगा। तेज़ी से आएगा तो यहाँ पे हिट करेगा इसका, और इसका सरफेस यानी कि जो स्क्रू है उसका सरफेस खराब करेगा। तो ये स्मूथली आते टाइम यहाँ पे इस टैनर जो लगाई गई है, यहाँ पे सिरेमिक की एक जाली होती है, नेट, सिरेमिक नेट होने की वजह से यहाँ पे ये जब भी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसमें उसकी वजह से ये हिट नहीं करेगा, हिट करके ये खराब नहीं करेगा। और यहाँ पे जब धीरे धीरे जब ये मेटल बढ़ेगा, लिक्विड मेटल, तो यहाँ आगे की तरफ आएगा। आगे की तरफ आने पे ये स्किन बॉब में जितने भी गैसेस होंगे वो सारे ऊपर की तरफ ट्रैप हो जाएंगे, और जो भी हैवी इम्प्योरिटीज है वो कुछ स्टैनर में और कुछ यहाँ स्किन बॉब के इस नीचे वाले हिस्से में आकर के छन जाएंगे या दूर हो जाएंगे। फिर यहाँ से जो गेट है, ये एक कैविटी से जस्ट पहले कैविटी का एक इंट्रेंस होता है जिसको हम गेट कहते हैं। ये हमारा डिसाइड करता है या कंट्रोल करता है इसके फ्लो को और टाइमिंग को। फ्लो जब भी ज़्यादा होगी तो टाइमिंग कम लगेगा, फ्लो कम रहेगा तो टाइमिंग ज़्यादा लगेगी, यानी कि ये फ्लो और वेलोसिटी को कंट्रोल करता है। और राइजर का काम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है। राइजर का काम जो होता है, सबसे पहला ये हमको इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट कैविटी इज fill or not, and the second one, it compensate liquid plus solid shrinkage. It compensate liquid plus solid, it means semi solid श्रिंकेज। तो फिलहाल बस इतना ही। थैंक यू सो मच।